Hello students, I am Dr. Akhilesh Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, DAVPG College, Varanasi. Today I am going to discuss on the structure and function of midbrain. I have already discussed the structure and function of hindbrain, and this video lecture is meant for the students of BA 6 semester psychology. Paper name is Neurophysiological Basis of Behavior. So I have already prepared two video lecture on spinal cord and another is on structure and function of hindbrain. This is all about midbrain. So let's start. What is midbrain and how it is function? So this is the major division of brain which I have already shown in the last video lecture, and today we have to discuss this midbrain, also known as mesencephalon. If we talk about the midbrain or mesencephalon, the midbrain is a portion of the brainstem positioned above the pons at the very top of the brainstem, directly underneath the cerebellum. This is one of the most important component of CNS, central nervous system, as all neural transmission that pass through the body throughout the peripheral nervous system to the central nervous system are relayed must at some point to and or from the brain pass through the midbrain. जो भी सूचनाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाती हैं वो मिड ब्रेन से होके गुजरती हैं, इसलिए मिड ब्रेन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. And the midbrain is associated with the many functions and system of the nervous system. Some of those functions being the management of auditory and visual sensory information via the inferior and superior colliculi respectively. So the superior colliculi is especially important for the visual function and inferior for the auditory function, because these structures are the part of brainstem. They specifically assist in motor reflexes associated with the visual and auditory stimuli. So visual और auditory stimulation में इसका जो है importance है. The midbrain is the most superior portion of the brainstem, connecting the brainstem to the cerebrum by the cerebral pedunculus. So we should not confuse with the cerebellar pedunculus, which connect the brainstem to the cerebellum. So this cerebral peduncles connect brainstem to the cerebrum, not the cerebellum. Just the two cerebellar hemisphere, there are also two, right and left cerebral peduncle. One of the most notable portion of the midbrain is the cerebral aqueduct, a part of the ventricular system that allows cerebrospinal fluid to flow down from the third to fourth ventricle. The cerebral aqueduct is located centrally to the cerebral peduncle. The midbrain can be further divided into two brain regions, which lie superior to the crus cerebri and substantia nigra. So these two regions of the midbrain are the tegmentum and tectum. तो टेक्टम और टेगमेंटम मिड ब्रेन के दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं. आगे हम उसी पर डिस्कशन करेंगे. तो हम देख सकते हैं ये जो है ये पोर्शन टेगमेंटम का है, नीचे टेक्टम का दिखा रहा है, ये क्रस सेरिब्री है और उसी तरह से सबस्टेंसिया निग्रा है, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट है. ये तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई पिक्चर में. तो हम बात करेंगे जो है टेगमेंटम की. So tegmentum is an area of grey matter surrounding the cerebral aqueduct
and is one of the most superior region of the midbrain, positioned anteriorly to the टेक्टम। तो टेक्टम के जो है इंटीरियर में ये टेगमेंटम देखने को मिलता है, और दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली एक्सटेंड डाउन द इंटायर लेंथ ऑफ ब्रेन स्टेम, बट द पोर्शन ऑफ इट फॉर्म द मिड ब्रेन। तो टेगमेंटम का एक पोर्शन ही है जो मिड ब्रेन का निर्माण करता है, अदरवाइज ये ब्रेन स्टेम की लंबाई में काफ़ी देर दूर तक जो है फैला होता है। पोर्शन ऑफ टेगमेंटम दैट constitute this specific region of the midbrain is segmented into two areas, and these two areas were named by their color, the red nuclei and periaqueductal gray. So red nuclei is concerned with the coordination of movement, and periaqueductal gray is the region of gray matter involved in suppression of pain. This is the location of tegmentum. You can see here the part of tegmentum. Red nuclei is this, and another is periaqueductal gray, and this is the cerebral pedunculus. cerebral pedunculus जो है ये दोनों साइड में आपको दिख रहा है, ये सुपीरियर कलिकुली है, सब्सटेंसिया निग्रा है। इन जो है दो संरचनाओं के अतिरिक्त जो है रेड न्यूक्लियाई और पेरिकोडेक्टल ग्रे के अलावा कुछ जो है साइंटिस्ट ने जो है ये सब्सटेंसिया निग्रा को भी टेगमेंटम के अंदर कंसीडर किया, उसका पार्ट माना है। तो इस तरह से देखें तो ये तीन संरचनाएं बेसिकली जो है टेगमेंटम के अंतर्गत आती हैं। अब हम रेड न्यूक्लियाई की बात करें तो रेड न्यूक्लियस इज वन ऑफ द ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई एंड पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम क्या है? ए पोर्शन ऑफ मोटर सिस्टम स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द मॉड्यूलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट। द रेड न्यूक्लियस रिसीव एफरेंट फाइबर फ्रॉम मेनी लोकेशन विद इन द डायंसेफेलन। डायंसेफेलन इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, उसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। एंड डेंटेड न्यूक्लियस, सुपीरियर कॉलिकुली, इनर पेलिडम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो रेड न्यूक्लियाई इन तमाम जो है पोर्शन से, ब्रेन पार्ट से जो है सूचनाओं को रिसीव करता है। इट आल्सो सेंड एक्सॉन टू द रूब्रो ओलिवरी एंड रेटिकुलो ओलिवरी फाइबर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। टुगेदर दीज टू कंट्रोल मसल टोन, बॉडी पोजीशन एंड द वे ऑफ वॉकिंग। हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी बॉडी की पोजीशन क्या, हमारा स्टेप कैसे होगा, जैसे हम किस गति से चलते हैं और चलने के दौरान हमारी बॉडी की पोजीशन क्या होगी, इन सब सारी चीज़ों को ये हमारा रेड न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। द रेड न्यूक्लियस के बारे में और चीज़ें हैं कि द डेल्टेड न्यूक्लियाई आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड इन द वाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम एंड कंट्रोल द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। तो जो हमने बताया कि डेंटेड जो है न्यूक्लियाई के साथ रेड न्यूक्लियाई का जो कनेक्शन है, यानी कि इनसे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, तो इसका जो काम मेन है डेंटेड का मुख्य काम तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट है। द सुपीरियर कॉलिकुली इज स्ट्रक्चर दैट हैज मल्टीपल लेयर, सम ऑफ विच हैव इंडिविजुअल फंक्शन, जैसे कि अपर लेयर ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुली कंट्रोल द रिसेप्शन ऑफ विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना। ये जो है अपर लेयर जो सुपीरियर कॉलिकुली का है वो रेटिना से विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और लोअर लेयर जो होती है वो जो है अदर न्यूरोनल इंफॉर्मेशन पास द ब्रेन। द सुपीरियर कॉलिकुली आल्सो टेक पार्ट इन द कंट्रोल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ आई एंड हेड। आई एंड हेड का जो ओरिएंटेशन है, मतलब कि जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो भी जो है सुपीरियर कॉलिकुली के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये जो है रेड न्यूक्लियाई था। अब दूसरा जो इसमें टेगमेंटम में पार्ट है वो है पेरिएक्वेडेक्टल ग्रे। पेरिएक्वेडेक्टल ग्रे को हम पीजी के नाम से यहाँ देखेंगे। तो पीजी इज अनदर स्ट्रक्चर लोकेटेड विद इन द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। द पीजी इज मास ऑफ ग्रे मैटर दैट सराउंड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट।
though it does not have any immediate identifiable anatomical reason, researchers have designated 4 divisions of the PZ. So these 4 divisions are dorsomedial column, dorsolateral column, lateral column, and ventrolateral column. These are separately based on the connection to the brain and other part of the nervous system and function. अगर हम पीजी की जो है बात करें तो पीजी का जो मुख्य काम है वो पेन इनहिबिशन में है. तो पीजी इज अ होल is recognized for its role in pain inhibition as it suppresses the sending of neuronal transmission from pain receptor, not necessarily inhibiting the body ability to detect pain. This is accomplished by the suppression of activity from neuron in the spinal cord. तो पेन इनहिबिशन में इसका रोल है पेरिकोडेल्टा ग्रे का, लेकिन ये जो है बॉडी की जो एबिलिटी है पेन डिटेक्ट करने की उसको नहीं कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है, बल्कि स्पाइनल कार्ड्स में जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वो सप्रेस करता है. पीजी आल्सो इन्वॉल्व इन मेनी अदर फंक्शन इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, ऑटोनॉमिक नर्व फंक्शन लाइक स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ वोकलाइजेशन एंड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस. तो इन सारी चीज़ों को भी जो है ये पेरिकोडेल्टा ग्रे नियंत्रण करता है. अब हम जो है तीसरे संरचना की बात करें टेगमेंटम की, जो थोड़ा विवादास्पद है. कुछ लोग इसको मानते हैं उसका पार्ट टेगमेंटम का, कुछ लोग नहीं मानते हैं. तो वो है सबस्टेंसिया निग्रा. तो दिस क्रिसेंट शेप्ड mass of nerve cell is the midbrain has quite a dynamic role. Although it is the smallest portion of the midbrain, it is involved in regulation of gathering auditory and visual sensory information, motor control, primarily informed by the production and distribution of dopamine, reward-based learning pattern and circadian rhythm. तो ये इतने महत्वपूर्ण जो है टास्क को ये सबस्टेंसिया निग्रा कंट्रोल करता है. और सबस्टेंसिया निग्रा इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया एक महत्वपूर्ण संरचना है जो खास तौर से जो है मूवमेंट से जो है रिलेटेड है. और बेसल गैंग्लिया इज कंपोज्ड ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन टोटल. द सबस्टेंसिया निग्रा बीइंग द लार्जेस्ट ऑफ द कलेक्शन. इसमें 4 न्यूक्लियाई बेसल गैंग्लिया में होते हैं. सबस्टेंसिया निग्रा जो है उसका एक पार्ट है. और भी 3 न्यूक्लियाई इसमें जैसे होता है, जैसे ग्लोबल पैलिडस है और जो है सबस्टेंसिया निग्रा है और जो है और इस तरह से अलग अलग जो है न्यूक्लियाई इसमें आते हैं. सबस्टेंसिया निग्रा like many other part of the brain, substantia nigra is situated in the pair, one per hemisphere, and is further divided into sub-regions, the pars reticulata and pars compacta. तो ये दो इसके स्ट्रक्चर हैं. जो है पास रेटिकुलेटा is responsible for relaying a thoroughly processed neuronal signal from the basal ganglia to the thalamus and superior colliculi and is particularly involved in rapid eye movement. तो ये पास जो है पास पेटिकुलेटा जो है खासतौर से आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट को नियंत्रित करता है. और दूसरा जो पोर्शन है उसको जो हम लोग पास कॉम्पैक्टा बोलते हैं. ये जो है ऑन द अदर हैंड इज इन्वॉल्व विद द मोटर कंट्रोल बट इनडायरेक्टली एज इट्स स्टिमुलेशन डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मूवमेंट. इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रोल है, क्योंकि देखा गया है कि जब ये एब्सेंस होता है तो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम जो है खास तौर से देखने को मिलते हैं व्यक्ति में. अब एक जो है ये जो है क्रस सेरेब्री इज अनदर पार्ट ऑफ सेरेब्रल पेडंकुलस दैट कंटेन डिसेंडिंग मोटर ट्रैक. ये जो हमारा सेरेब्रल पेडंकुलस है, पेडंकल है, उसका एक और पार्ट है क्रस सेरेब्री, जैसे टेक्टन वगैरह है. तो
इसमें जो है डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट है, और ये दो खास तौर से डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट हैं जो कार्टिको स्पाइनल नर्व ट्रैक्ट और कार्टिको बल्बर नर्व ट्रैक्ट के नाम से जानी जाती है। इट आल्सो कंटेन नर्व ट्रैक्ट दैट कनेक्ट टू द सेरिब्रम एज वेल। तो ये जो है महत्वपूर्ण संरचना है। ये प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन का, आप इसको देख सकते हैं। जो है ये क्रस सेरेब्री है, सबस्टेंसिया निग्रा आप यहाँ देखें, यहाँ टेगमेंटम है, ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, ये सेरेब्रल पेडंकल है, मेडियल लेमनिस्कस है, और ये टेक्टम है। इसी तरह से ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है। ये सारी संरचनाएं यहाँ पर विजिबल हैं। उसी का जो है ये थोड़ा और एलिवेटेड फॉर्म है, कह सकते हैं उस रूप में, न्यूक्लियाई के रूप में। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं जैसे हमने भी जो बात करी। रेड न्यूक्लियाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्शन पर। ये देखिए, ये पोर्शन टेक्टम का है, ये टेगमेंटम का है। टेक्टम अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है क्रस सेरेब्री है। तो ये जो है आप यहाँ देखिए सबस्टेंसिया निग्रा है। इसी तरह से ये सारी संरचनाएं इसमें जो है अवस्थित हैं। और यहाँ ऊपर देखें पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर है। Now we will talk about the tectum. So tectum is made up entirely of the superior and inferior colliculi at the dorsal end of the midbrain. With these two structures, tectum control the master coordinate system for other sensory efferent nerves including auditory and somatosensory. This is possible because of how closely the superior colliculi work with the retina. तो superior colliculi का retina के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, वो कंट्रोल को कंट्रोल करता है। दिस अलाउ द नर्वस सिस्टम टू क्रिएट पिक्चर इफ यू विल ऑफ द बॉडी सेंसरी इन्वायरमेंट। ये जो है टेक्टम एक तरह से इन सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुली के द्वारा बॉडी सेंसरी इन्वायरमेंट के बारे में एक पिक्चर क्रिएट करता है। द ऑप्टिक टेक्टम इज आल्सो थॉट टू बी द इन्वॉल्व इन विजुअल मेमोरी। जो विजुअल इंफॉर्मेशन की मेमोरी है उसके बारे में भी इस तरह की जो है रिसर्च आ रही है कि ये ऑप्टिक टेक्टम जो है उस विजुअल मेमोरी में जो है के में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है। अब हम जो है एक कंक्लूडिंग स्लाइड के रूप में आपको 2-3 स्लाइड दिखा रहे हैं मिड ब्रेन या मेसेनसेफेलम। अगर लोकेशन देखें तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड in the anterior most continuation of the brain stem that still maintain the tubular structure, the spinal cord. There are two parts of the midbrain, tectum and tegmentum. The tectum dorsal surface को हम कहते हैं। tectum contains two important nuclei, inferior colliculi जो which is important for the audition या responsible for auditory जो है sensation, and another is superior colliculi which is important for the vision which control the visual information. So if you talk about the function of the tectum, it is here that these pathway cross so that each half of the brain control the opposite side of the brain. तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर जो है टेक्टम में ये विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो है ये जो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को क्रॉस होती है। And deep within the brain stem is the reticular formation within which lies the basic life support system. तो इसमें जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन भी इस पोर्शन से गुजरता है जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर दूसरा जो इसमें स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन में वो टेगमेंटम जो वेंट्रल रूट पर होता है, और इसमें 3 कलरफुल स्ट्रक्चर है। पेरिकोडेक्टल ग्रे जो एनाल्जेसिया खास तौर से पेन कंट्रोल के लिए होता है जिसकी मैंने भी चर्चा की। सबस्टेंसिया निग्रा सेंसरी मोटर के लिए है। रेड न्यूक्लियाई भी जो है सेंसरी मोटर के लिए है। तो दिस बॉटम पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन न्यूक्लियाई फॉर द cranial nerve that control eye movement and lower portion of the brain. Substantia nigra is here found and it is a large red nuclei involved in the movement. The brain stem is the structure which include medulla oblongata, the midbrain and pons. मैंने बार बार जो है मिड ब्रेन स्टेम की चर्चा की है कि ये
जो है जो भी जितने स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व है मिड ब्रेन में, दीज आर द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम है क्या? ब्रेन स्टेम एक स्ट्रक्चर है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो हमारा हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, और पॉन्स जो हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, और मिड ब्रेन, इन तीनों मतलब सेरेबेलम को छोड़कर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पोर्शन से मिलके ये हमारा ब्रेन स्टेम बनता है। तो ये जो है, अगर हम मिड ब्रेन के फंक्शन की, जनरल फंक्शन की बात करें, तो कंट्रोलिंग रिस्पॉन्स ऑफ साइट, आई मूवमेंट, pupil डायलेशन, रेगुलेट मसल मूवमेंट एंड हियरिंग। यानी कि जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुली होती है उससे खासतौर से ऑडिशन और हियरिंग जो है कंट्रोल होती है। सुपीरियर कॉलिकुली से विजुअल इंफॉर्मेशन, और इन्फीरियर से जो है ये हियरिंग कंट्रोल होती है। पॉसिबल हेल्थ रिलेटेड इशूज एसोसिएटेड विद द हैंड ब्रेन। अगर हैंड ब्रेन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो क्या समस्या हो सकती है? तो रिसर्चर्स शो दैट न्यूरोजेनरेशन ऑफ नर्व सेल in the substantia nigra result in a drop of dopamine production। डोपामाइन आप जानते हैं जैसा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, and significant loss of dopamine level 60 to 80% may result in the development of Parkinson disease। Parkinson disease क्या है? तो एक प्रकार से ये मोटर जो है डिजीज है। Parkinson disease is the nervous system disorder that result in the loss of motor control and coordination। Symptoms include tremors, slowness of movement, muscle stiffness and ट्रबल विद बैलेंस। तो ऐसे लोगों में जो है हाथ पैर में कंपन, मूवमेंट का डायरेक्शन सही नहीं होता है, मसल्स में जो स्टिफनेस आ जाती है, कड़ापन आ जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये खास तौर से सब्सटेंसिया निग्रा जो कि मिड ब्रेन का जो है एक न्यूक्लियाई है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। तो उम्मीद है कि ये आपको मिड ब्रेन जो है का स्ट्रक्चर फंक्शन समझ में आया होगा।